So firstly, who will tell me about what was there in greedy method? When we were discussing about the greedy method, then we discussed कि greedy method is deals with the problems that are maximization type of problem और minimization type of problem. ठीक है, तो greedy method में हम क्या करते हैं, we pick one input at a time और उसके लिए हम डिसीजन लेते हैं कि उस इनपुट को हमें कंसिडर करना है जहां हमें उसको डिस्कार्ड करना है. ठीक है, दैट वाज अबाउट ग्रीडी मेथड. और ग्रीडी मेथड में हम क्या करते हैं, वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस. फ्रॉम दोज फिजिबल सॉल्यूशन वी हैव टू पिक द बेस्ट सॉल्यूशन और उस बेस्ट सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ठीक है, now in case of dynamic programming, firstly how will you say about dynamic programming? Again, whenever you will be mentioning about dynamic programming, firstly you will mention it is an algorithm design technique. ठीक है, ये भी क्या है, एक एल्गोरिदम को डिजाइन करने की टेक्निक है. that can be used when the solution of a problem can be viewed as a result of subset of sequence of decision. तो इसमें हमारे पास क्या है, अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ डिसीजन जो मीन्स सपोज यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम अप टू वन स्टेप, वहां से आपको कुछ सोल्यूशन मिल गया, इट मीन्स यू हैव फाउंड वन सीक्वेंस एंड बेस्ड ऑन दैट सीक्वेंस you have to proceed to the next step. Means you can also say you are working in stages. ठीक है, you are working in stages. Stages means there may be stage 1 in which something is done, then stage 2, stage 3 and so on. तो उस केस में क्या होता है, स्टेज 1 में से जो भी आपके पास सीक्वेंस ऑफ डिसीजन आपने लिए उसके बेस पे यू टुक डिसीजंस फॉर स्टेज 2. ठीक है, और स्टेज 2 के बाद आपने क्या लिए, स्टेज 3 के लिए. इट मीन्स इफ आई से समथिंग इज पॉसिबल एट स्टेज 1 देन दैट इज पॉसिबल एट स्टेज 2 ऑल्सो. सो स्टेज 2 का जो डिसीजन होगा वो स्टेज 1 को कंसिडर करना है आपने. ठीक है, सो और उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी. ठीक है, अब इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, यू हैव टू डिफाइन डायनामिक प्रोग्रामिंग. सो इफ यू हैव टू डिफाइन डायनामिक प्रोग्रामिंग यू विल से डायनामिक प्रोग्रामिंग इज एन एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक that can be used when the solution of a problem can be viewed as a result of sequence of decisions. ठीक है, and the problem that can be viewed in this way an optimal sequence of decision can be found. अब इसमें भी क्या करना है, आपने एक optimal solution find करना है but based on sequence. और इसमें sequence को what I said stages कि एक stage, next stage and third stage, fourth stage, so on. Means आप you are taking a number of decisions based on every stage and you reach the final conclusion in that. ठीक है, next important question from this topic is on this thing, principle of optimality. You may be asked a question, what is principle of optimality? Fine. So if I define principle of optimality without going into technical stage, then I will simply say कि अगर मेरे पास एक स्टेज पे आपने कोई सोल्यूशन फाइंड आउट किया, उस स्टेज पे वो सोल्यूशन ऑप्टिमल है, तो वो वाला जो सोल्यूशन होगा वो आपकी नेक्स्ट स्टेज के लिए भी ऑप्टिमल है. गॉट माय पॉइंट और नॉट, और शैल आई रिपीट? फिर इसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन करवाती हूँ आपको. वी विल स्विच टू टेक्निकल डेफिनेशन. Okay, so we will see the actual definition or you can say the technical definition of this principle of optimality. Here we say that the principle of optimality states, what does it state? It states an optimal sequence of decisions has the property that whatever the initial state and decisions are, the remaining decision must constitute to an optimal sequence with regard to the state of resulting from the first decision. इससे पहले मैंने आपको क्या डिफाइन किया था, I told you कि जो अगर आपने स्टेज 1 पे कोई सोल्यूशन फाइंड किया, फिर आप स्टेज 2 पे जा रहे हो, तो स्टेज 2 के लिए जब आप डिसीजन ले रहे हो, यू से कि स्टेज 2 के लिए जो आप डिसीजन ले रहे हो वो स्टेज 1 के लिए भी ऑप्टिमल था. That is known as principle of optimality. Something if it is
feasible or optimal at this stage, then it was also optimal for the previous stage also. ये नहीं है कि इस स्टेज में ऑप्टिमल है पिछली में नहीं था, ये नहीं होता. अगर इस स्टेज का कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन है देन इट मीन्स वो उसकी प्रीवियस स्टेज का भी ऑप्टिमल सोल्यूशन था. ठीक है. सो इट सेज कि एन ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ डिसीजन हैज द प्रॉपर्टी दैट व्हाटएवर द इनिशियल स्टेट and decisions are, the remaining decision must constitute to an optimal sequence with regard to resulting from the first decision. For example, इसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ. सपोज आप एक लोकेशन से स्टार्ट हुए हो, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यू वांट टू गो. व्हाट विल हैपन इन दैट केस? अगर आपने first step, here suppose you are coming from Ludhiana, so if you are coming from Ludhiana to Khanna, suppose firstly you said कि मेरा shortest distance है, I have two ways, either I can go via Kohada side or I can go via ये सानेवाल side. तो आपने एक डिसीजन ले लिया कि नहीं, shortest is through सानेवाल. ठीक है, तो आप कहाँ पे आ गए हो? सानेवाल. तो अगर सानेवाल के बाद आपने खन्ना आने के लिए नेक्स्ट स्टेप लेना है तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट फ्रॉम सानेवाल ओनली. तो उस लुधियाना से सानेवाल वाला जो डिस्टेंस आप ट्रैवल कर चुके हो, जो आपने बेस्ट डिसाइड किया था, उसको डिस्कार्ड नहीं करना. दैट विल रिमेन इन इंटैक्ट. तो जब नेक्स्ट स्टेज आई, आपने सेकंड स्टेप, जब आपने सेकंड सिटी से स्टार्ट करना है आगे जाने के लिए, तो जो प्रीवियस सिटी से आप ट्रैवल करके आए हो, यू आर कंसिडरिंग दैट ऑल्सो. गॉट माई पॉइंट? कि प्रीवियस स्टेज के सोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है. सो आई होप प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी भी आपको समझ आ गया. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज अबाउट योर वन मोर थिंग दैट वाज, लेट मी ओपन दैट, breadth first search and depth first search. Anybody having any idea about breadth first search and depth first search? BFS and DFS? Any idea? Is my PPT visible? Yes, sir. Okay. So next topic in your syllabus is that is breadth first search and depth first search. So firstly we will be discussing about breadth first search. Breadth first search says that if suppose we are having a particular node at a particular location like this, you are starting from this point and this is the tree. Tree ऐसे होता है, we are having a tree in this form. ठीक है, like this. अगर आप breadth first search approach यूज करते हो तो it means if you are starting from this node, then firstly you will traverse this, then this one, then this one and then this one. इस level पे this is level 0, this is level 1. तो पहले लेवल 0 को जब आपने ट्रैवर्स कर लिया तो नेक्स्ट जो आपने नोड ट्रैवर्स करने हैं, इट मींस लेवल 1 के सारे नोड आप ट्रैवर्स करोगे और उसके बाद में यू स्विच टू लेवल 2. फिर उसके बाद आप लेवल 2 के सारे नोड ट्रैवर्स करोगे. दिस इज नोन एज ब्रेडथ फर्स्ट सर्च. मीन जो उसके सिबलिंग हैं, जहाँ उसके नेबरहुड वर्टेक्स नोड हैं, वो सारे ट्रैवर्स होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट डेप्थ फर्स्ट सर्च तो उसमें क्या होगा, दिस वाज द ट्री, आपने ये नोड ट्रैवर्स किया तो उसके बाद में आप इस पे नहीं जाओगे, आप इस पे जाओगे लेफ्ट मोस्ट ऑर्डर पे. ठीक है, फिर अगर फर्दर यहाँ पे है तो इसको ट्रैवर्स करोगे एंड सो ऑन. फिर ये वाला, देन दिस वन, लाइकवाइज इसको ट्रैवर्स के आप करके आप इस पॉइंट पे वापस आओगे, फिर आप इस ब्रांच को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे. दैट इज इन योर ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, सॉरी डेप्थ फर्स्ट सर्च. सो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च सेज एनी सर्च एल्गोरिदम दैट कॉन्टिन्यूस नेबर ऑफ अ वर्टेक्स नोड. किसी भी वर्टेक्स के सारे नेबर्स को ट्रैवर्स करना, दैट इज ऑनगोइंग एजेस जो उसके हैं ऑफ द वर्टेक्स प्रेडेसेसर इन द सर्च बिफोर गोइंग टू द आउटगोइंग एज. आउटगोइंग एज मीन्स जो आपका ये वाला नेक्स्ट एज है, इस पे जाने से पहले उसके नेबरहुड में जितने भी नोड्स हैं उन सभी को वो ट्रैवर्स करेगा. डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होगा,
वो नेबरहुड वाले नोड पे नहीं जाएगा, उसके पहले उसके चाइल्ड नोड पे जाएगा, ठीक है। सो मेजर पॉइंट क्या है, इफ वी टॉक अबाउट BFS दैट इज नेबर्स, इफ वी टॉक ऑफ DFS तो क्या है, चिल्ड्रन, उसके चिल्ड्रन नोड को ट्रैवर्स करना। सो इन केस ऑफ DFS एनी सर्च एल्गोरिदम दैट कंसीडर्स आउटगोइंग एजेस, इसमें आउटगोइंग एजेस डिस्कार्ड नहीं होंगे, यू विल कंसीडर दोज एजेस links of the children of a vertex node before any vertex siblings, siblings या neighbor से पहले children उसके explore होंगे, ठीक है। so this is your depth first search. So let us do with example of BFS. BFS says it is a level order traverser of a tree, could be used as a breadth first search, search all the nodes in a level before ongoing nodes. That's what I said कि ये मेरे nodes हैं ट्री के, like this, fine. So this was, we consider this is level 0, this one was level 1, this one is level 2, and this one is pose level 3. So if I performing breadth first search, what will happen, after processing this level I will process all the nodes of level 0, it or इनको we can call them as neighbors, you can call them as neighboring nodes or you can call them as siblings also, क्योंकि इनके पेरेंट्स इसके लेवल के सेम है। देखो इस लेवल पे अगर देखें तो इसके ये सारे इसके या पेरेंट है, तो इट मीन सिबलिंग्स या नेबर्स आप बोल सकते हो, सारे ट्रैवर्स होंगे। जब लेवल 1 कंप्लीट हो गया तो लेवल 2 के सारे नोड्स प्रोसेस होंगे, उसके बाद में लेवल 3 के सारे नोड्स प्रोसेस होंगे। दैट इज द मीनिंग दैट इज स्पेसिफाइड ओवर हियर, it says search all the nodes in level before going down to the next level. Now we are having this example जिसपे हम breadth first search करेंगे। So which node will be the first node to traverse, सबसे पहले कौन सा traverse होगा, C। अगर ये मेरा parent node है, you will start from here, so we are starting with C, this is at level 0, we have started from level 0 first, and और इसमें फर्स्ट नोड कौन सा है, C will be traverse, so this is traverse. Now after this, after C कौन सा traverse होगा, we will go to child node, child node कौन सा आ गया हमारे पास, A, so we will process A, ठीक है। after processing this A which is the next node, because at same level हमने ट्रैवर्स करने हैं, हम लेवल 1 की ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, तो लेवल 1 में ए के नेबर में कौन सा है, ए का नेबर कौन सा है, जी है, ठीक है। जब यू कैन से ए का सिबलिंग कौन है, जी है। सो आफ्टर प्रोसेसिंग ए विच नोड इज टू बी प्रोसेस, वी हैव टू प्रोसेस जी, फाइन। नाउ विच इज द नेक्स्ट नेबर ऑफ जी, एक्स, सो एक्स विल बी प्रोसेस्ड। नाउ A processed, G processed, X processed. Who is the next neighbor? Next neighbor is Z. So we will process Z. Now you can see this was level 1. All know what happened here. All nodes of level 1 are traversed. सारे के सारे nodes जो level 1 के हैं वो traverse हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, we will go to level 2. So level 2 में first node is your W. This is the first one node. So we will be traversing this node. Fine. So next में move on to next level, that is process W. Now who is neighbor to W? We have Q as the neighbor. So next node processed will be Q in this case. After this next is P, because this is at the same level. How many nodes are there at this level? These nodes. That is P, W, Q, P, O, U. After processing this, we have to perform this thing. Now see, after Q, P, Q, O will be processed, then U will be processed. Now why we are performing this search? We have to find some element. Search क्या होता है, किसी element को find करना, और हमारी query क्या है, हमें कौन सा node find करना है, B। तो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च को अप्लाई करते हुए हम उस टाइम तक सर्च करते रहेंगे जब तक हमें बी नोड नहीं मिल जाता। फाइन। सो अप टू यू वी हैव ट्रैवर्स, दिस लेवल इज ट्रैवर्स, दिस वन इज ट्रैवर्स, दिस वन इज ट्रैवर्स। अब हम आ जाएंगे इस लेवल पे, दिस लेवल
इस लेवल में फर्स्ट नोड कौन सा है? L. We will process L. After processing L, we will process K like this. Now see, L is processed, K is processed. जब हमारे पास K प्रोसेस हो गया, नेक्स्ट नोड कौन सा है? इमीडिएट नेबर टू K is B. So we will process B. Now what was B? B was the node that we was looking for. हमें क्या सर्च करना था? हमें B नोड सर्च करना था और हमें B पे वी हैव रीच, सो इट मीन्स हमें रिजल्ट मिल गया. वी गॉट द रिजल्ट. जिस नोड को हमें सर्च करना था, वी हैव फाउंड दैट नोड. So in this way we say search is successful using breadth first search. So I hope you are clear about breadth first search. So next हमारे पास है depth first search. So if we talk about DFS, we say breadth first search को अगर आपने implement करना है, it is implemented using a queue. What was queue? Queue was first in first node, first out. जो नोड सबसे पहले insert होगा वो सबसे पहले out होगा. Like अगर मेरे पास ये स्टैक ऑफ प्लेट्स है, ठीक है, मैंने एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखी, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट, फिफ्थ प्लेट. सबसे पहले कौन सी प्लेट उठाऊंगी मैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सबसे पहले कौन सी प्लेट पिक करोगे? क्या आप सेकंड इसको पिक कर सकते हो, सेकंड प्लेट को? नो मैम. क्योंकि अगर आप सेकंड प्लेट को पिक करोगे, ये सारी ऑल दीज थ्री विल फॉल. तो इट मीन सबसे पहले कौन सी प्लेट पिक होगी? फिफ्थ प्लेट पिक होगी. तो ये कौन सा होता है? इट मीन्स जो हमारे पास ये है, दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो चीज हमने सबसे बाद में इंसर्ट करी है उसको सबसे पहले पिक कर रहे हैं, या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट. और ये इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है? स्टैक. और अगर आप सपोज ये एक टिकट विंडो है, यहाँ से आपने टिकट लेनी है रिजर्वेशन के लिए या व्हाटएवर, आपने कहीं पे जाना है, ये टिकट है. इस लाइन में आप खड़े हुए हो, आप सबसे बाद में आए हो, दिस इज यू, आप सबसे बाद में आए हो, आप यहाँ पे खड़े हो गए क्यू में आके. तो आपकी टर्न कब आएगी? जब इन सबकी टर्न निकल जाएगी. ठीक है, यू विल कीप ऑन गोइंग अप टू दिस प्लेस जब ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे. इट मीन्स आप सबसे पहले आए थे, यू आर लास्ट इन. तो लास्ट इन हो तो आप लास्ट आउट भी हो गए. क्यू में खड़े हुए हो, जब लाइन में खड़े होते हैं तो टर्न अगर लास्ट में आए तो सबसे बाद में ही आएगी, अगर सबसे पहले आए हो तो सबसे पहले टर्न आएगी. ठीक है, सो यू कैन से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्यू तो वो होती है लास्ट इन लास्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैक तो स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट. और जो हमारी ब्रेडथ फर्स्ट सर्च है, इसमें वी इम्प्लीमेंट क्यू. इसकी इम्प्लीमेंटेशन व्हेनेवर यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट in your programming language in practicals, you implement it using a queue. So depth first search क्या होती है? It is first typically implemented using a stack. So अगर आप queue को use कर रहे हो, it means you are performing breadth first search. और अगर आप stack use कर रहे हो, then you are using DFS, that is depth first search. अब अगर मैं आपको पूछूंगी आप कौन सी यूज करोगे? कैन यू टेल मी कि सिंपली मैंने आपको रैंडमली पूछा कि मुझे आपसे कोई प्रोग्राम बनवाना है, तो आप BFS लगाओगे या DFS लगाओगे? ब्रेडथ फर्स्ट सर्च करोगे या डेप्थ फर्स्ट सर्च करोगे? या फिर मैं आपको पूछूं क्यू को इम्प्लीमेंट करोगे या स्टैक को करोगे? व्हाट विल यू से? क्या आंसर दोगे मुझे? कैन यू टेल मी कि कौन सी कर सकते हो? यू कांट टेल. कब तक नहीं बता सकते हो? जब तक आपको ये नहीं पता होगा करना क्या है. जब तक आपको यही नहीं पता कि आपने एक स्टैक ऑफ प्लेट बनाना है, ठीक है, या फिर आपने बुक्स को एक के ऊपर एक बुक्स रखनी है, अरेंज करनी है, या फिर आपने एक रिजर्वेशन विंडो पे क्यू अरेंज करनी है, until and unless you are aware about the problem that is to be solved, you can't say कि आप क्यू इम्प्लीमेंट करोगे या स्टैक इम्प्लीमेंट करोगे. जब प्रॉब्लम क्लियर होएगी, only then you will be able to say कि क्या आपने इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर BFS दिस इज अबाउट DFS. तो अगेन हमारी प्रॉब्लम सेम है, वी हैव टू सर्च द नोड B. हमें फाइंड करना है B को, एंड दिस इज माय स्टार्टिंग नोड. मेरे की स्टार्टिंग यहीं से करनी है, दिस इज माय स्टार्टिंग नोड. ठीक है, जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, सबसे पहले मेरा C प्रोसेस होगा. डन. सो आई हैव प्रोसेस द वेरी फर्स्ट नोड C, पेरेंट नोड. अब C के बाद यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपका नोड A ही प्रोसेस होगा. BFS में भी यही प्रोसेस होता है, DFS में भी.
तो up to this step BFS and DFS are same. So we have processed A. अगर ये BFS होती, breadth first search होती, तो क्या प्रोसेस करते हैं इसका नेबर G. बट ये DFS है तो इसका नेबर नहीं प्रोसेस होगा, इसका चाइल्ड प्रोसेस होगा. ठीक है, तो आपके पास A का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन सा है? W. तो आप क्या प्रोसेस करोगे A के बाद W को. आफ्टर दिस प्रोसेसिंग ऑफ W, अगर ये BFS होती तो क्या प्रोसेस होता? दिस थिंग. बट ये DFS है तो अगेन आप रूट में जाओगे, इसके चाइल्ड में जाओगे. सो आफ्टर दिस यू विल प्रोसेस L. जब आपकी L प्रोसेस हो जाएगी, ये वाली ब्रांच है ये कंप्लीट हो गई. ये मेरे L क्या है? दिस इज अ लीफ नोड. जो लास्ट नोड होता है जिसका कोई फर्दर चाइल्ड नहीं होता उसको हम बोलते हैं लीफ नोड. तो मेरे पास लीफ नोड आ गया. जब मेरे पास लीफ नोड आ गया, आई विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस ब्रांच. तो ये ब्रांच तो कम्प्लीटली एक्सप्लोर्ड है. सो आई विल गो टू बैक स्टेप जिसकी ब्रांच एक्सप्लोर्ड नहीं है. मैं यहाँ पे गई, इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं था. फिर मैं कहाँ पे जाऊंगी? ए पे जाऊंगी. अब ए के बाद सी पे जाने से पहले आई हैव फाउंड कि ए का एक चाइल्ड है जो अभी प्रोसेस नहीं हुआ. तो इस केस में व्हाट वी नीड टू डू? इन दिस केस वी हैव टू प्रोसेस दिस क्यू नोड. Fine. So this is the thing that we are performing in this case. We have to process Q node. Fine. So after processing Q node, we have to go to the next one. ठीक है. After processing this Q, we have reached this point. Then we have reached this point C. Now after this C, we have to check for दिस नोड. अब ये ट्रैवर्स हो जाएगा. जब आपका ये G ट्रैवर्स हो जाएगा, देन यू विल गो टू C अगेन. फिर आप C का राइट वर्ड चाइल्ड प्रोसेस करोगे X. X के बाद यू विल प्रोसेस P. आफ्टर प्रोसेसिंग P यू विल प्रोसेस K. आफ्टर प्रोसेसिंग K यू विल प्रोसेस दिस M. आफ्टर प्रोसेसिंग दिस M you will process this R. After this R you will go to this B node and here you will get the solution. You will get the final answer. So this is the thing. After processing G, we will process this node X. After the processing of X node, you will have to process this P. So go on to this P node. After that, go on to K, then M, then R, then B. Now B was the node that we were searching for. So we have completed our search. We have reached the destination point. So you will stop over here. So this was BFS and DFS. तो ये भी आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है. ठीक है, just give me 1 minute. So till now we have discussed about basics of dynamic programming. Then we discussed about principle of optimality. After that we have discussed breadth first search and depth first search. So under dynamic programming we are left with one topic, that is Warshall's algorithm. Warshall's algorithm is to find out all pair shortest path. कि आपने एक जगह से स्टार्ट होके आपने देखना है कि एक कितने नोड्स हैं जो आप ट्रैवर्स कर सकते हो और कैसे आप उसको मीट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को. सो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर.